चलिए, थोड़ी और डिटेल्स हम कनिका जी से लेंगे, लेकिन डॉक्टर नीलम, मेरी आवाज़ अगर आप तक आ रही है, आप अपनी बात हाँ रखिए। जी, अब आ रही है। जी सॉरी जी जी, अबाउट द बिल्कुल इनकन्वीनियंस। अपनी बात रखिए डॉक्टर साहब, हम सुन नहीं पाए थे पहले। राइट, सो जैसे वाली साहब कह रहे थे कि ही वाज आस्किंग कि नीलम की फिटनेस का राज क्या है, एंड यू नो इवन आई हैव अ सन हु इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 30. So I think you need to first fall in love with yourself. That is the key. So when you fall in love with yourself, you know that it is not only the taste, but it is the quality that is extremely important in life and not just the quantity, which we always say. So when we eat, you have to remember always five things. You don't need a very big expert to tell you what to eat. It is very simple if you understand the fundas. The funda is we have to eat five things. One is carbohydrate, one is protein, one is healthy fat, one is vitamins and minerals, and the other is liquids. So for that, for eating the carbs, your ratio of the carbs cannot go very high. So therefore, when you use a carb which is like sugar or anything with a fruit which is like a mango fruit or grapes, they are very high sugar. Immediately when it goes into the body, when the sugar goes, there is a way that the body has to release insulin to lower that high sugar. So once the insulin is released, then subsequently it lowers the sugar and you'll feel hungry again. So when you take complex carbohydrates, it releases the sugar gradually. When it releases the glucose gradually, then you will not feel quickly hungry. So that is why all the stars that we're talking, they were either talking about oats or multigrain bread. These are going to release millets, multigrain breads. Remember, in breakfast or any time, don't use processed food maida bread because that is going to be harmful. Then you need to take proteins because you will need that for a muscle building. That protein could be in the form of an egg, or it could be in the form of sprouts, or it could be in the form of paneer, or it could be dal ka chila, besan ka chila, anything which is protein that you need to take. जी Healthy fats, when we take, जी either you make it in olive oil or a little ghee, but along with it, remember to take nuts and seeds. Seeds are very good जी in antioxidants and health. So walnut, nuts, seed, these are going to be there. If you want to take a fruit, I don't like to take immediately unless it's a small amount of berries or a strawberry which you want to take in a oat cereal. Otherwise, take it mid morning. You can put your fruit बिल्कुल। separately. चलिए, अब कनिका जी आपके पास आती हूँ। बहुत अच्छे से डॉक्टर नीलम ने समझाया है कि क्या क्या किस तरीके से हम अपना ब्रेकफास्ट प्लेट को सजा सकते हैं ताकि हम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ले सकें, एक आइडियल ब्रेकफास्ट। क्योंकि अगर हम भारत की बात करते हैं, अभी डॉक्टर वली बता रहे थे कि एक आध चीट मील भी चल जाएगी। चीट मील्स मतलब कि हम ब्रेकफास्ट, लेकिन अगर हम भारतीयों की बात करें तो एक आध की बजाय वो 3-4 दिन चीट मील हो जाती है। लेकिन वापस उसी बात पे आते हो, हमारे पास ऑप्शंस बहुत है। ये भी डॉक्टर वली कह रहे थे कि आप विदेशों में जाएं तो शायद कम ऑप्शंस है, लेकिन हम लकी हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो क्या क्या ऑप्शन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के लिए हो सकते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के? बहुत सारे ऑप्शंस तो यहाँ पे डिस्कस हो गए और आपने भी बता दिए हैं। तो अगर हम बात करें जैसे मूंग दाल चीला, तो वो एक ऑप्शन है जिसके साथ हम थोड़ा सा स्मूदी जरूर ऐड करें, बिकॉज कई बार क्या होता है, सिर्फ अगर हम सॉलिड ब्रेकफास्ट खा रहे हैं तो वी कीप ऑन ईटिंग 3 to 4 चिल्लास, तो वो भी अच्छा नहीं है। बिकॉज वो क्या करता है, फिर मूंग दाल यूरिक एसिड बढ़ा सकता है, क्योंकि आप दिन में भी दाल ले रहे हैं। तो उसके साथ आपने एक लिक्विड बेवरेज को ऐड करना जरूरी है, हेल्दी, जैसे बटर मिल्क ऐड कर लिया, आमंड मिल्क ऐड कर लिया, या स्मूदीज ऐड कर ली जिसमें नट्स और ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ऐड करके उसमें थोड़ी सी बेरीज डाल दी, या फिर कोई भी फ्रूट थोड़ा 1/4 फ्रूट ऐड कर दिया। तो ये एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। एंड सेकेंड, अवोकाडो टोस्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट जिसमें मैं ब्रेड को बोलूंगी कि हम नॉर्मल ब्रेड ना खाएं, बिकॉज जो नॉर्मल ब्रेड है वो ईस्ट से और बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स उसमें होते हैं। तो सार्डो ब्रेड इज अ वेरी गुड ऑप्शन जो आप घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो आजकल अवेलेबल है ऑनलाइन। बट उसमें आपने जो न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक करनी है कि उसमें सिर्फ
व्हीट होना चाहिए और वाटर। देयर शुड बी नो अदर इंग्रेडिएंट्स इन इट, बिकॉज आजकल मार्केट में जो सार्डो ब्रेड्स भी आ रही हैं उसमें भी बहुत सारे प्रेजर्वेटिव्स एडेड हैं। तो जितना आप वो चीजें लेंगे जिसमें प्रेजर्वेटिव्स नहीं है वो बहुत अच्छा है। और जब आप ब्रेड और टोस्ट ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, एवोकाडो ले रहे हैं, तो एक प्रोटीन मील को जरूर ऐड करें। तो उसके साथ आप अगेन बटर मिल्क है, स्प्राउट्स यू कैन टेक इट, और ड्राई फ्रूट्स की स्मूदी आप ले सकते हैं। देन कि आजकल मिलेट्स बहुत हेवी इन है आई वुड से, क्योंकि हर कोई मिलेट्स पे बहुत ज्यादा चर्चा भी चल रही है, बिकॉज दीज आर हाई इन फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं। तो वी कैन मेक मिलेट्स की रेसिपीज, मिलेट्स के डोसा बनाए। जैसे हम अगर राइस ऐड कर रहे हैं तो लो जीआई राइस ऐड कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मिलेट डाल दें, थोड़ी सी उड़द दाल और मूंग दाल, उसका डोसा, इडली, उत्पम। सो बहुत सारी वेराइटीज हैं। इसके साथ अगेन हम बटर मिल्क ले सकते हैं, और थोड़ा सा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम करने के लिए बिल्कुल लो फैट पनीर भुर्जी इसमें स्टफ कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर भार्गव, आपके पास आते हुए, क्योंकि हम जो ये स्केड्यूल सब रूटीन देख रहे हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनका हम रूटीन देख रहे हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात तो हो ही रही है, लेकिन इसी के साथ साथ क्या सिर्फ हेल्दी ब्रेकफास्ट काफ़ी है, या फिर हमें एक्सरसाइज और अपनी नींद को भी उस हिसाब से लेना होगा? See, definitely exercise is a very integral part of staying healthy. आप जो भी खाते हैं, whatever you eat, in fact, when मैं ये बोलता हूँ कि कोई भी खाना बुरा नहीं है जब तक आप उसको justice ना दें। Justice देने का मतलब कि whatever you are eating, you need to actually burn it out and consume it. And moreover, with exercise क्या होता है कि आपका जो basal metabolic rate होता है वो एक maintained रहता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब कि जो जिस गति से आपका कैलोरीज आप कंज्यूम करते हैं या कैलोरीज बर्न होती हैं, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट हमें एक लेवल के ऊपर रखना चाहिए जो हमारा वजन को संतुलित रखे, जो हमारे खाने को एक प्रॉपर जस्टिस दे। अगर हमारा बीएमआर या बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता जाता है तो हमारा वेट इनवेरिएबली बढ़ता जाता है, हम चाहे खाना उतना ही खाएं। तो एक्सरसाइज हमारे बीएमआर को संतुलित रखने के लिए बहुत जरूरी है। मोर ओवर कि जैसे जैसे हम उम्र के साथ बढ़ते हैं तो हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन, मसल वीकनेस, ये सारी चीजें आती हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप जितना एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे आपका जो वियर एंड टियर रहेगा वो उतना ही कम रहेगा। एंड moreover you can stay fit for a longer time। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और 40 की उम्र में उन्हें लगता है कि अब वो 60 साल जैसे दिखते हैं, एंड रिवर्स भी ट्रू है। अब जैसे अगर हम देखें, अभी हमने देखा फौजा सिंह जी को, फौजा सिंह जी एट द एज ऑफ 114 भी वो मैराथन कर रहे थे, तो इट वाज रियली अनफॉर्चुनेट दैट ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, बट उनकी फिटनेस का राज यही है एक संतुलित आहार एंड रेगुलर एक्सरसाइज। सो ये हम ये भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है।